سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے بڑے شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ لاہور کے کئی علاقے 3 گھنٹوں بعد 2 ہفتوں کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ڈی ایچ اے فیز 1، فیز 5، عسکری 10، جوہر ٹاؤن کے 5 اور گلبرگ کے 3 بلاکس بھی اس میں شامل ہیں۔ اسلام آباد کو رخ کریں تو G9 سیکٹر کے علاقوں G9 2، 3 میں مزید 3 روز کے لیے بند۔ سیکٹر I8 میں ایک روز میں کورونا کے 200 مریض سامنے آنے کے بعد I8 اور I10 کو مکمل بند کرنے پر غور۔ پشاور کے کچھ علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کو 15 دن کے لیے بڑھا دیا۔ کورونا سے جڑی کچھ اور خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے آگے چل کر، لیکن ابھی بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی، جو آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کورونا سے نمٹنے میں مجرمانہ غفلت کی ذمہ دار حکومت عوام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں۔ پاکستان کے عوام ان کو اس پر اپنا رد عمل اگلے الیکشن میں دکھائیں گے۔ کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ ہمارا جو کورونا کا وزیر ہے، جو ماشاءاللہ کورونا کا ویسے ہی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا، مگر گھبرانا نہیں ہے، ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا۔ دوسری جانب مراد سعید نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ پاکستانی عوام کو کورونا سے بھی بچانا ہے، بھوک سے بھی بچانا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم عمران خان سندھ کے 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت وہ گورنر ہاؤس میں PTI قیادت کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے کامران رضی سے۔ کامران، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس دورے سے متعلق؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم اب سے کچھ دیر قبل ہی کراچی پہنچے ہیں۔ پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد وہ 2 روزہ دورے پر سندھ میں آئے ہیں اور آج رات کراچی میں قیام کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو کور کمیٹی ہے، سینئر رہنما، ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر اعظم عمران خان کی 2 دن کے دورے میں وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی ملاقات ابھی تک شیڈول میں شامل نہیں ہے۔ کل صبح وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے MPA سے، MQM کے ڈیلیگیشن سے اور جو ان کے اتحادی GD ہے ان کے ڈیلیگیشن سے ملیں گے اور پھر لاڑکانہ جائیں گے، جہاں وہ احساس سینٹر کے ایک سینٹر کا دورہ کریں گے اور وہیں پر چیف سیکریٹری اور IG کو بھی ذرائع نے بتایا کہ بلایا گیا ہے۔ تاہم حکومت سندھ کے کسی بھی نمائندے سے یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ابھی تک کوئی ملاقات کا شیڈول نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ذرائع وزیر اعلیٰ ہاؤس نے بھی ہمیں یہ بات کنفرم کی ہے اور خاصا کل بھی لاڑکانہ میں سیاسی ملاقاتیں کریں گے وزیر اعظم عمران خان۔ ٹھیک ہے، کامران رضی ہمیں اپڈیٹ کریں اور بتا رہے ہیں کہ ابھی تک شیڈیول میں وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ کے کسی نمائندے سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کے دورہ سندھ میں پروٹوکول کی گاڑیوں کی مانگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر لاڑکانہ کی جانب سے سکھر اور حیدرآباد ڈویژن کی انتظامیہ کو پروٹوکول کے لیے گاڑیاں فراہم کرنے کا مراسلہ بھیجا گیا ہے۔
जिसमें वजीर आजम के 17 जून को लाड़काना और जैकबाबाद के दौरे के लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियों का मुतालबा किया गया है। मुरासले में हैदराबाद डिवीजन इंतजामिया को 16, सक्खर इंतजामिया को 6 गाड़ियां फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सक्खर और हैदराबाद डिवीजन के हर जिले से एक फराडो या फॉर्च्यूनर जीप और एक टोयोटा कोरोला GLI ड्राइवर के साथ फराहम की जाए। एडिशनल कमिश्नर लाड़काना के मरासले में कहा गया है कि सिंध हुकूमत के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की हिदायत पर ये मरासला भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल के मुतालबे की तरदीद सामने आई है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान किसी किस्म के प्रोटोकॉल पर यकीन नहीं रखते और ना ही वजीर आजम ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई दरखास्त की गई है। ये सिंध हुकूमत का खत है। और अब बात करेंगे भारत के रवैये की। भारत सिफारती ताल्लुकात पर वियना कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाने लगा। दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव किया, अमले के साथ इंतहाई बदतमीजी और धक्कम पेल की। घर वापस जाने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों का पीछा करके उन्हें खौफजदा किया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तानी सिफारतकारों को शदीद खौफ हरास में मुब्तला किए हुए हैं और अब नई दिल्ली पुलिस भी धमका रही है। नई दिल्ली पुलिस ने मंगल को पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव किया, पाकिस्तानी सिफारती अमले के साथ बदतमीजी की, गालियां दी और धक्कम पेल भी की गई। घरों को जाने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों का पीछा किया गया, इन्हें हरासा किया गया और धमकाया गया। जियो न्यूज से बात करते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारतीय दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को उनकी सफारती जिम्मेदारियों से रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ भारतीय हुकूमत का रवैया आलमी सफारती आदाब और वियना कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में 2 भारतीय सिफारतकारों की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पीर को एक शहरी शदीद जख्मी हो गया था, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ताहम कानून शिकनी के बावजूद सफारती इस्तिस्ना के बायस उन्हें कुछ ही देर में रिहा भी कर दिया गया था, मगर भारत इसके बाद से ओछे हथकंडों पर उतरा हुआ है। साथी रिपोर्टर जरगुन शाह के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान लद्दाख में होने वाली झड़पों में कम से कम 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय फौज के एक सीनियर एहलकार का यह बताना है कि 36 भारतीय फौजी लापता हैं। ये फौजी गलवान वैली में होने वाली झड़पों में मारे जा चुके हैं या चीनी फौज की कैद में हैं। अब तक भारतीय हुकूमत ने लापता होने वाले फौजियों से मुतल्लिक न तरदीद की है न ही तस्दीक। एक भारतीय तजिया निगार ने ट्वीट किया है कि गलवान वैली में होने वाली झड़प में चीन ने भारत के 36 फौजियों को कैद में ले लिया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया गया है। लेकिन एक मेजर और कैप्टन अब भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कैद में हैं। इन कैदियों की रिहाई के लिए लद्दाख में मुज़ाकरात जारी हैं। चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके में कशीदा सूरत हाल पर चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 बार सरहदी खिलाफ वर्जी की, चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया, इश्तियाल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय अफवाज में संगीन तसादुम हुआ। ताज़ा खबर यह है कि भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के तसादुम के दौरान कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर जराए अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कम से कम 20 अफराद इस में मारे गए हैं। इस 20 भारतीय फौजी हैं जो मारे गए हैं इस तसादुम में। लद्दाख में ये सूरत हाल पेश आई। रवात के करीब कुकिंग ऑयल और घी के गोदाम में लगी आग 6 घंटों बाद भी बेकाबू है। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने के अमल में शामिल हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद सुबहान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का ये कल्याम का इलाका है जहाँ पर निजी ऑयल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी और इस टाइम आपको मेरे कैमरामैन साजिद तारिक दिखा सकते हैं कि चाहे मेरे राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, दोनों ही तरफ ये तकरीबन 25 कनाल का एरिया है जो आग से मुतासर हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुके हैं। अब इस आग को हवा की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि किसी सूरत आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। रेस्क्यू के अमला बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम तर जो रेस्क्यू की
फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ पर बुलाई गई। अभी भी यहाँ पर मुख्तलिफ व्हीकल्स फायर फाइटिंग आ रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। जी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क नहीं फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज समझता है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो नज़रिए पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हम सब का दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। हमारे फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज हैं वो, और पूरी जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे पूरी कौम से बल्कि इस हाउस के तहत ये वादा है कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता, ना करेगा, और एक काबिज है और जदोजहद जारी रहेगी कि इसको कब्जे से इसको छुड़ाया जाए। कोरोना से मुतल्लिक आपको खबर दें तो बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना के खिलाफ डेक्सामेथासोन दवा का कामयाब तजर्बा किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से 3 में से 1 कोरोना का शदीद बीमार मरीज सेहतियाब होने लगा है। और साइंसदानों के मुताबिक ये दवा तशवीशनाक हालत में मुब्तला कोरोना मरीजों की मौत का खतरा किसी हद तक कम कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर ने वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर MNA मोनिस इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अवामी राबिता मुहिम मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कोरोना से अमवात और मुतासिरीन की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मरीज अस्पतालों के सहन राहदारियों और दाखिली दरवाज़ों पर इलाज के लिए तड़प रहे हैं। हुकूमत कभी आवाम को कोस रही है और कभी अपोजिशन को बुरा भला कह रही है। ये उसकी घबराहट का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया है। ये इक़दाम सूबे में कारोबार के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। लाहौर में जारी बयान में उन्होंने कहा कि मईशत चलेगी तो रोज़गार मिलेगा और टैक्स जमा होगा। बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद शुगर मिल्स की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जहां पर चीनी 70 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। अदालती अहकामात के बाद मुख्तलिफ शहरों में शुगर मिलों की जानिब से स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जहाँ चीनी 70 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। RYK मिल्स की जानिब से रहमियान खान में मिल्स के बाहर 70 रुपए में चीनी फरोख्त की जा रही है। रुकनपुर, लियाकतपुर, जनपुर, तिरंडा, मोहम्मद पनाह, खान बेला सर्कल्स में स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों में मोबाइल फेयर, प्राइस शॉप्स और मोबाइल वैन के जरिए मुख्तलिफ बाजारों में घरेलू सार्फिन को सस्ती चीनी फराहम की जा रही है। लोधरा और बहावलपुर में लगाए गए चीनी के स्टॉल्स पर एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। स्टॉल्स पर कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। आम मार्केट में चीनी 80 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। शहरियों का मुतालबा है कि चीनी आम मार्केट में भी 70 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जाए। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी कैंप के शरका ने एक बार फिर मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज़ादी गली में जंग जियो CBAs और सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत आज भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी कैंप में कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फारान और मुस्लिम लीग नून के इकबाल खाकसार ने भी शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश है, जिसे किसी तौर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
हम नहीं मानते। एहतजाजी कैंप के शरका से जनरल सेक्रेटरी द न्यूज़ यूनियन दारा जफर और जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस यूनियन राना यूसुफ ने भी खिताब किया और मीर शकील उर रहमान की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज 95वें रोज से जारी है। ना हाथ में खंजर न दामन पे कोई छीट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। मीर शकील उर रहमान 95 दिन से पाबंदे सलासल हैं। उन्होंने हौसला नहीं हारा, उन्होंने अपने साथियों का कलम नहीं झुकने दिया। उन्हें पाबंदे सलासल हुए 3 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन उनके पाए इस्तकलाल में ज़रा भी लग्जश नहीं आई। पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती बरादरी ये कह चुकी है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी है। एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान साहब का जो कसूर है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में सच और हक की बात करना। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अपने अदारे की बका की जंग लड़ेंगे। जब तक वो तारीख लिख रहे हैं, हमारे वर्कर भी एक तारीख लिख रहे हैं। इंशाअल्लाह शकील साहब यहाँ मौजूद हैं। मीर शकील उर रहमान ने जिस आज़ादी का आलम अपने हाथ में उठाया है उसको बुलंद से बुलंद तर करिए। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 95वें रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ आफरीदी ने जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को इंसाफ के तकाजों के खिलाफ करार दिया और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में कायम एहतजाजी कैंप में उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं बनता। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने और मीर शकील उर रहमान के मुकदमे को फौरी सुनने का मुतालबा किया। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डिविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप कायम है। मुजाहिरीन का कहना है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश है। नवाबशाह में जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने मोहनी बाजार में एहतजाज किया।